Nestled in the heart of northern India, Haryana is a dynamic state with a population exceeding 27 million. Haryana is strategically located between the Aravalis and the Yamuna River, giving it fertile plains and the title of India's food bowl. Bordering the capital city of Delhi, Haryana has less than 1.4% of India's land mass. Haryana is home to 22 districts, 154 cities and towns, and over 7,000 villages. From the bustling streets of Gurugram to the historic town of Kurukshetra, Haryana is a state where mythology, agriculture, and innovation shape a unique identity, an epicenter of India's growth and cultural evolution. Hailing from the Mongoli Jatan village of the ancient land of Kurukshetra, Nayab Singh Saini was sworn in as the Chief Minister of Haryana on 17th October 2024. Here's how the state is progressing under his leadership. Chapter 3 of the Haryana Progress Report examines how the Haryana government has achieved farmers' welfare from seed to shop. Despite constituting only 1.4% of India's land mass, Haryana contributes 15% to India's total agricultural produce and supply. Haryana is a significant wheat, rice, jowar, bajra, cotton, jute, sugarcane and mustard producer. With over 84% of cultivable land, Haryana's fertile lands support over 17 lakh farmers as a primary source of income. Known as India's breadbasket, Haryana is responsible for its farmers and their crops. Subsidies offered by the Haryana government on various aspects of the seed-to-shop agricultural journey fulfill this responsibility. As a first step, the Haryana government provides subsidies for purchasing improved and hybrid seeds for various crops as well as fertilizer, water, electricity and farming equipment. While the numbers tell us a part of the tale, the real story lies in the lives of the people impacted. Let's hear what the stakeholders have to say. As of 2024, the Haryana Seeds Development Corporation has 79 sales counters across the state, supported by 6 seed processing units and warehousing centers. मेरा नाम राम कुमार है, गांव चौड़मस्तपुर, जिला अम्बाला से मैं निवासी हूं और सरकार की उपलब्धि है कि सरकार हमारे हर तरह से बीज की उपलब्ध कराती है। उसके बाद हम अपने खेत में बिजाई करते हैं, जैसे कनक होगी, पैडी होगी और बाजरा हो गया और ये सरसों होगी। सरकार इन 24 फसलों पे MSP देती है और हम अपनी सरकार बीज हमें अच्छी तरह से उपलब्ध करा रही है, जिस कारण हमारे एकड़ में फसल अच्छी आती है। तो जैसे ये पैडी है 30 क्विंटल पर एकड़ की उपजाऊ होती है। जैसे बीट है, बीट तो कम से कम 20 क्विंटल एक एकड़ में निकलती है। उसके बाद हम अपने खेत से उठा के इसको मंडी में लेके आते हैं। सरकार की बड़ी अच्छी सुविधा है, वो पंजीकरण कराते हैं। फिर पंजीकरण के बावजूद सरकार हमारे पोर्टल पे हम बिक जाती है, तो सरकार 72 घंटे में हमें पेमेंट करती है। सरकार जो बीज देती है बहुत अच्छी क्वालिटी है, जैसे बीट का है और पैडी का है। सरकार ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो नए बीज आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में पास होके आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है कि सरकार की ये नीति है कि हर किसान के लिए बड़ा अच्छा सोच रही है। इस कारण हमें अच्छे बीज उपलब्ध हो रहे हैं और हमारे खेती भी अच्छे ढंग से हो रही है। हरियाणा सरकार श्री नैब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे हरियाणा को और प्रगतिशील पे ले जाए, जिस कारण हम किसानों की और आमदन का इजाफा हो सके। और आज मैं यहाँ बीज लेने के लिए आया हूँ। ये मूंग का बीज मेरे को लेना है, तो मूंग का जो बीज है बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है और सब्सिडी पे मिलता है। यहाँ से पहले मैंने जो गेहूँ का बीज है वो भी लिया था, तो उसकी जो पैदावार है वो भी अच्छी हुई थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी किसान भाइयों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सरकारी बिक्री केंद्र हैं उनका लाभ उठाएं और जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है उनका भी फ़ायदा उठाएं। और जो यहाँ पर भाई साहब बीज देने के लिए बैठते हैं, इनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है और किसानों को कोऑपरेट भी करते हैं। ठीक है, किसानों की जो समस्या है उसको सुनते हैं और कोई भाई कुछ पूछना चाहता है तो उसका बहुत बढ़िया वो आंसर देते हैं। देखिए, जब से यहाँ से हमने बीज लेना शुरू किया है तो पैदावार बहुत अच्छी होती है
और मंडी में जब फसल जाती है तो उसके जो दाम हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वैसे तो हम सब्जी की खेती भी करते हैं, बट यहाँ पर सब्जी के जो बीज है वो नहीं मिल पाते, तो वो हमें प्राइवेट दुकानों से खरीदने पड़ते हैं। तो मैं तो सरकार से यही आग्रह करूँगा कि इन बिक्री केंद्रों पर जो सब्जी वगैरह है उनके बीज भी उपलब्ध करवाए जाए। आज से पहले जब हम कभी बीज लेते थे तो वो प्राइवेट दुकानों से लेना पड़ता था, तो उनकी जो गुणवत्ता थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी। तो आज हमारी जो सरकार है वो किसानों के लिए जो कार्य कर रही है, जो सब्सिडी दे रही है, वो सराहनीय है। और आज हमें गेहूं के बीजों पर, मूंग का बीज है, जैसे बरसम है और जैसे खाद है, तो उस पर जो सरकार है वो सब्सिडी दे रही है। और समय समय पर जो हमारी सरकार है वो किसानों को हर तरह की सब्सिडी और मुफ्त बीज भी उपलब्ध कराती है। किसानों का जो सरकार की ओर से जो बीज केंद्र बने हुए हैं, जिससे किसान बीज खरीदता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो किसान का बीज भी अच्छा होता है, वो बिकता भी अच्छा है। हमें मार्केट से जो प्राइवेट लेते हैं उनसे बीज ये बेहतर होता है और इससे किसान के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता। हम जब खरीदते हैं तो जब गवर्नमेंट भी हमें सुविधा देती है तो फ़ायदा भी किसान को होता है, क्यों बिकने में भी रेट में अच्छी बिकती है। और वैसे बाकी ये है कि बीज किसान को उपलब्ध होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होती है, तो क्वालिटी अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी और बिकेगा भी सही, किसान को फ़ायदा होगा। और हमारे यहाँ पे कई बीजों पे सब्सिडी प्रोवाइड रहती है, जैसे गेहूं के बीजों पे, जीरी के बीजों पे, और कनक जो गेहूं का बीज है उस पे 1000 रुपये क्विंटल की सब्सिडी पिछले ईयर थी। और इस टाइम पे मूंग की जो बिजाई हो रही है इस पे 75% की सब्सिडी रहेगी और ये ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही बीज प्रोवाइड किया जाएगा। और वैसे जनरल सब्सिडी में जो मूंग का बीज है वो इस टाइम पे किसानों को सुविधा मिल रही है, उसकी वो ले जा सकते हैं। और हमारे पास जीरी का बीज भी उपलब्ध होता है और बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बाहर के मुकाबले रेट में बहुत फ़र्क रहता है। कई बार यहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध रहती हैं हमारे यहाँ, सब्सिडी से मतलब कम रेट होता है मैम, बहुत कम रेट पे रहता है। और मार्केट से यहाँ पे कम रेट में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। क्वालिटी मैम बहुत अच्छी होती है यहाँ पे बीजों की, और यहाँ पे लाइनों में लग के बीज बिकता है। किसानों का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है और यहाँ पे 4000 से 5000 क्विंटल सिर्फ अम्बाला ज़िला की सेल है। अगर तीन सेंटर की हम मिलाएं तो यहाँ पे बराड़ा, नारायणगढ़ भी अम्बाला में ही आते हैं, तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार क्विंटल गेहूं की खपत होती है जो बीज बिकता है हमारा सरकारी। बीज हमारे पूरे हरियाणा में 7 यूनिटें हैं, मेन स्टोर है, वहाँ से बीज बिक्री केंद्र पर आता है। और जोन से सीजन का बीज है उसी सीजन का बीज आता है और वही किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। हमारा बीज बेहतर इसलिए मानते हैं फार्मर, एक तो फार्मर को कीमत जो है वो वाजिब कीमत पे दिया जाता है, दूसरा इसकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी आती है। और हमारा जो स्टाफ है वो फार्मरों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फार्मरों को खेतों का विजिट भी करते हैं और उनको बताते हैं कि जी आपके फसल सही चल रही है या ग्रोथ में कमी है, आप खाद कौन सा खाद देना है, सिंचाई करनी है या नहीं करनी है, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा डिपार्टमेंट मिलकर उसको टाई अप करते हैं। देखो सर, पहले जो बीज थे आज से 10 साल 15 साल पहले, उनका जो प्रोडक्शन का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन की लिमिट थी, और अभी जो लेटेस्ट जो वैरायटियाँ आ रही है उनका रिसर्च ही उस आधार पर किया गया कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अभी जैसे गेहूँ की वैरायटी है WH 1270, इसकी औसतन पैदावार 80 से 90 मन की, और अगर फार्मर उसको सही तरीके से वैज्ञानिक जो सिफारिश करते हैं उससे करता है तो ये 100+ चली जाती है। और उसका हमारे किसी भी बीज का कहीं भी कोई रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन देखना है तो वो हमारा हर चीज़ अवेलेबल होता है। सर ये सब्सिडी का ऐसा है, हमारे पास जो रेट आता है निगम की तरफ से, उसमें रेट आता है जनरल सेल रेट पर क्विंटल। जैसे गेहूँ है, गेहूँ का क्विंटल का रेट आ गया, जैसे अभी पिछले लेटेस्ट 2024 का है, उसमें रेट था हमारा 2875 रुपये प्रति क्विंटल। वो 1150 रुपये का एक बैग था जिसका वेट था 40 kg गेहूँ का। तो वो रेट तो था सब्सिडाइज रेट, कि सब्सिडी के साथ रेट है।
जबकि फुल रेट था इसमें 1,000 रुपये और बढ़ा कर 3875 रुपये क्विंटल। और जो 1,000 रुपये या 400 रुपये प्रति बैग जो सब्सिडी है वो हम फार्मरों की लिस्ट बढ़ा के जो सेल हुई है उसकी, और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं फार्मरों के पास टेलीफोनिक और फिजिकली करके, और फिर वेरीफाई करते हैं, और वो हमारे उसके निगम के खाते में सब्सिडी का पैसा सरकारी अकाउंट से ही सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ना कि इसका कोई कैश में लेन देन होता है। After purchasing seeds, the farmers had to buy fertilizers and other nutrients at a subsidized rate. जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार है वो किसानों की अच्छी फसल के लिए समय पर किसानों को खाद प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर किसानों को 3 खादों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिसके अंदर शुरुआती दौर में DAP और NPK की ज़रूरत रहती है और बाद में यूरिया की ज़रूरत रहती है। ये जो खादें हैं जो किसान बड़ी भारी मात्रा में काम में यूज़ में लेता है, तो ये जो खाद है ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही महंगे दर पे मिलती है। जैसे जो DAP का एक कट्टा है वो अराउंड 3,000 रुपये का मिलता है, पर जो भारत सरकार और जो हरियाणा सरकार है वो किसान को 1,350 रुपये में प्रोवाइड करवाती है। और जो यूरिया का जो कट्टा है वो उसकी प्लांट बेस्ड सब्सिडी मिलती है। जैसे हम अगर बाहर से आयात करवाएं यूरिया को तो वो 1,500-1,600 रुपये का एक कट्टा पड़ता है, और अगर हमारे जो प्लांट हैं भारत के अंदर वहाँ से बनवा के मंगवाएं तो वो और भी महंगी यूरिया पड़ती है, अराउंड 2,000 के आसपास पड़ती है। पर भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने इसका एक तय रेट फिक्स किया हुआ है किसान के लिए, जो कि 266.5 रुपये है। तो इसी तरीके से जो भारत सरकार और जो हरियाणा सरकार है वो किसानों की, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी कितना भी अप्स एंड डाउन्स आते रहें, कितने भी खाद की किल्लत हो, कुछ भी हो, पर किसानों को एक तय रेट पे खाद प्रोवाइड कराती है, जिससे किसान की उपज में भी बढ़ाव होती है और किसान को समय पे खाद दिलाने का भी भारत सरकार और हरियाणा सरकार काम करती है। Let's hear the farmers explain how the various subsidies are transforming their lives. मैं यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांटों का काम करता हूँ और बागवानी का काम करता हूँ। बागवानी में नींबू है, अमरूद है, कटहल है, आंवला है और बहुत सारी वैरायटियाँ हैं हमारे पास। और ऑर्नामेंटल में भी 38 वैरायटियाँ हैं जो फूलों के साथ पत्तियाँ लगती हैं, उसका काम है। तो इसमें हमारी सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। किसान को हरियाणा सरकार ने जागरूक करने का काम किया है। हर साल बड़े बड़े मेले लगवा करके किसान को नई नई टेक्निकलों के बारे में, ड्रिप सिस्टम के बारे में, सोलर है या नई नई वैरायटियाँ हैं, नई नई मशीनरी है, बहुत जानकारी दी है। और हमें बहुत सी चीज़ों पर सब्सिडी भी देते हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम है, पानी की बचत होती है एक तो उससे सबसे पहले, और जो है ड्रिप सिस्टम से उस पर पूरी सब्सिडी है 90%, 10% ही किसान को देना पड़ रहा है। हमारा एक दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वैज्ञानिक आते रहते हैं हर महीने, वो भी हमें बीज भी उपलब्ध कराते हैं। अब जैसे हमारा पहले बिजली का बहुत वो था, तो जब से सूर्य ऊर्जा लगा है 75% सब्सिडी पर, जब से बिजली का भी इतना वो नहीं है कि कभी कब आएगी कि जब आएगी। अब जैसे अब गेहूँ कटाई का टाइम चल रहा है तो इसमें दिन में बिजली नहीं आती, रात में आती है, 11-12 बजे देते हैं। तो किसान रात को भगता था अपनी नींद को छोड़ करके, अब हमारा काम दिन में ही हो जाता है। और जो ड्रिप से सिंचाई होती है उसमें मात्र 1 घंटे हम चलाते हैं तो 1 एकड़ की भराई हो जाती है और उसमें खरपतवार भी कम होता है और इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। अब तक मैंने धान गेहूं का मतलब जो फसल लगाया था। अब 2017 से मैंने एक बागवानी का देख के मेले में गया, जैसे तो वहाँ बताया गया कि भाई बागवानी लगाओ, ये करो वो करो, तो मैंने आके अपना सिस्टम बदल दिया। अब बागवानी लगा रखी है 6 किले में। अब इसमें बहुत बढ़िया सहयोग सरकार भी दे रही है और सब्सिडी दे रही है। अब इसमें नींबू है, अमरूद है और केला है, कटहल है, ये मौसमी है। तो ये मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार ऐसे ही अगर देती रहे सबको, मतलब जो है सहारा, तो बहुत किसान को अच्छा महसूस होगा। और ये जो हमारी सरकार आई हुई है, सैनी साहब हैं जो,
ये बहुत बढ़िया मतलब जो अपना वो कर रहे हैं, सबकी देख रेख कर रहे हैं, किसान की बहुत मदद कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा हमें बीजों पर सब्सिडी दी जाती है। मूंग का बीज हो, अब मूंग की बिजाई होनी है, उस पर सब्सिडी है। इसके बाद धान आएगा, उस पर सब्सिडी मिलती है। गेहूं पे सब्सिडी मिलती है बीज पे हमें। और उस बीज की क्वालिटी प्राइवेट के मुकाबले अच्छी होती है और एक विश्वास होता है। और जो हम बीज बोते हैं वो मार्केट में भी हमें अच्छे दामों पर बिक्री होता है। और सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा हमें इम्प्लीमेंट, जितने भी हमारे खेतों में इम्प्लीमेंट होते हैं, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर या दवाई छिड़कने वाली मशीन, सब पे सब्सिडी दी जाती है। सरकार अच्छा काम कर रही है। The final destination for the farmers is the purchase centers. There are in total 114 market committees across 22 districts of Haryana, with 114 principal market yards, 83 sub-yards, 220 purchase centers, 33 fruit and vegetable mandis, and 114 grain markets. This is Mahendra Singh. He has been farming for the past 30 years on 12 acres of land. He cultivates wheat, mustard, and bajra. The produce they grow sustains his family of 11. Today, he has come to the Pataudi Market Committee to sell his wheat crop. मंडी में आ जाते हैं आड़ती के थ्रू बिकता है। कमीशन मिलता है, क्या मिलता है ये पता नहीं जी, हमें सरकार देती है उनको। गेट पे जो गेट पास वगैरह कटता है वो कटवा कर हम आड़ती को दे देते हैं। वो उस फसल का ब्यौरा देख के कितना वजन है, कितना क्या है, और बिल वगैरह भेज देते हैं। एफर्ट जो एजेंसी खरीदती है उनके पास, थोड़ी देर में पैसे आ जाते हैं। घंटा तो 72 घंटे कह रखी, पर एक आध दिन फालतू पे लग जाते हैं, नहीं आ ही जाते हैं, सब आ रहे हैं पैसे खूब लगातार आ रहे हैं। अब तो बिचौलिया का मतलब भी नहीं है, डायरेक्ट ले रही सरकार। यार्डती है ये, नो समझ लीजिए सरकार को करके दे रहे हैं। इनकी भराई उराई तुलाई उलाई करके सारी वो करके सरकार को इनका जो कमीशन मिलता है वो कमीशन मिल जाता है उसको। नहीं सरकार डायरेक्ट ले रही, कोई दिक्कत ना है। अब सरकार का अब ये बीजेपी आड़े से रजिस्ट्रेशन होने लग गया, उसके हिसाब से उतना ही माल बिकेगा जितने का रजिस्ट्रेशन है। मेरा 8 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ तो 8 एकड़ का ही माल बिकेगा और उसके हिसाब से पेमेंट आ जाती है। कोई मतलब दिक्कत ना है आप किसान को। अब यहाँ पानी की सप्लाई की सहूलियत है जी, ना लाइन में लगना पड़े ना और कुछ, फसल आती बिक जाए तो इससे बढ़िया सुविधा और क्या हो किसान को। जगह जगह टंकी लगा रखी है पानी की सुविधा के लिए, सारे वो हुआ बैठने के किसान विश्राम गृह बना रखा है। बढ़िया ये किसानों को पहले कुछ पानी अपने उसमें होता था, एक उसका किलो का फर्क नहीं आता थी उसको। आप मेरे फ़ोन के अंदर मैसेज आता है पहले, आपका इतना माल बिक गया, इतनी पेमेंट है, इतना वो है। बैंक में पढ़ने से पहले वो आ जाता है, आपका जे फार्म इतने का बन गया है। तो मतलब उसमें कोई सकी को ना कोई भाई मेरी फसल कमाई गड़बड़ की है या वो भी है। बीज से लेके और बाज़ार तक हमें कोई समस्या नहीं आती। टाइम टू टाइम सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, जैसे खाद, बीज और स्प्रे वगैरह का जो भी मटेरियल है हमें सरकार से टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जब हमारी फसल कट जाती है, निकल जाती है, तब हम मंडी लेके आते हैं तो हमें पहले टोकन कटवाना पड़ता है। टोकन कटवा के अपना तुरंत आड़ती के पास अपना तोल करवाया और चले गए। 2 दिन बाद मैसेज आता है, अकाउंट में हमारे पूरे पैसे आ जाते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले हमें दर बदर भटकना पड़ता था, कभी किसी के आड़े को पचना पड़ता था कि भाई हमारा माल बिकवा दो, या किसी आड़ती के पास चक्कर काटना पड़ता था। तो ना ही हमारा माल टाइम से बिक पाता था, ना ही पैसे टाइम से आते थे। बीज का भी बहुत बड़ा समस्या होती थी, जैसे कि बारिश हो गई तो हम बीज लेने के लिए गए कहीं भी सरकारी संस्था के ऊपर, तो उसमें हमें बीज प्रोवाइड नहीं होता था। उसके लिए भी बोलते थे कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। इस वजह से हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब हमें सब टाइम टू टाइम मिल जाता है, तो हमें फसल बोने में और बेचने में कोई परेशानी नहीं आती। किसानों के हित में सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, जैसे कि सब चीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई है, जैसे कि अपना कि टोकन वगैरह का है, जो भी है मतलब कि अलग अलग सब्सिडियाँ दी है कि भाई इसमें ऐसा करोगे तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसमें ये बीज होगे तो इससे आपको ये अच्छा बेनिफिट मिलेगा, फसल अच्छी होगी। जो भी होगा वो सब अच्छा मिला हमें सरकार से कोई शिकायत का अभी तक वो नहीं।
क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें मतलब कि ना बीज मिलता था, ना खाद मिलता था, कुछ नहीं मिलता था टाइम टू टाइम। और फसल बेचने के टाइम पे भी इतनी समस्या आती थी कि हम परेशान हो जाते थे, ना ही कोई पैसा मिलता था, ना किसी को, ना कुछ और। अब क्या होता है कि अब बीजेपी सरकार के अंदर हमें सब चीज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जा रही है, और इससे कि हम भी खुश हैं और हमारे घर वाले। पहले अगर मान लो कि बारिश हो गई और हमें बीज नहीं मिला या मान लो खाद नहीं मिला, तो उसमें किसान क्या करता था कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ता था, या वो तो सुसाइड करे। अगर मान लो किसी भी आड़ती से, किसी और रिलेटिव से उसने पैसे ब्याज पे ले लिए, तो अगर उसने मान लो फसल बो दी या फसल नहीं बोई, बारिश हो गई, तो वो क्या करेगा, वो पैसे कहाँ से देगा? उसके पास तो एक जरिया खेती का ही है ना। अगर उसको खेती में अगर पैसा नहीं बचेगा तो वो क्या करेगा, सुसाइड ही करेगा। खेती को लेकर पहले हमारे कि पापा जी हैं और दादाजी हैं, वो भी खेती करते ही आ रहे थे, तो हम भी खेती कर रहे हैं। और अब हमें बीजेपी सरकार जब टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा रही है, तो हम दूसरा काम क्यों करेंगे? अगर हमें इससे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो हम अपना खेती करेंगे ना। कमेटी की तरफ से सारी सुविधाएं मिली हुई है, और यहाँ पे गेट पास कटवाते हैं, अंदर फसल आराम से बिक जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। और स्टाफ बहुत बढ़िया है यहाँ कमेटी का, और हमारे सेक्रेटरी साहब भी बहुत है, अच्छे हैं। सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे तक रहते हैं, अपने देख रेख में सारा काम कर रहे हैं। और पानी वानी की सब चारों तरफ से सुविधाएँ हैं, चारों तरफ लगा रखे हैं टंकी ने। यहाँ भी खड़े हैं, वहाँ भी आ जाएगा, फ्रीजर भी है, पैसा हमारे बैंक अकाउंट में सीधा आता है। बिचौलिया कोई नहीं है बीच में, सरकार ने बिचौलिया ख़त्म कर रखा है। फसल के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखा है जी, जो भी दाम है। जैसे सरसों का है 5950 है, आपके गेहूँ का 2425 है, तो हमारे सीधे हमारे खाते में डायरेक्ट आ जाते पैसे। फसल बेचने के बाद हमारे जल्दी 4-5 दिन में तो पैसे आ जाते हैं खाते में। बहुत बेकार सफ़र है जी पहले का, तो ना यहाँ पे टाइम से बिकता था पहले, पूरी रात पड़े रहते थे नई मंडी में, पूरी रात निकाल दी, सुबह निकल जाते थे, पर कोई जो नहीं था। अब बीजेपी सरकार आने के बाद और फिर बढ़िया काम हो रहा है जी। और यहाँ के स्टाफ है, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। सही टाइम पे हमें बीज मिलता है और सही टाइम पे हमें खाद मिलता है, और ना हमें कोई बेचने में तकलीफ़ है, बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी फसल को ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन के बाद जब हमारी जो ऑनलाइन फसल बिकती है तो मंडी में हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमारे टाइम पे फसल बिक जाती है, टाइम पे पैसे मिल जाते हैं, खाते में पैसे आ जाते हैं। पहले तो दिक्कत रहती थी जी, ना तो टाइम पे पैसे आते थे, ना फसल सही ढंग से बिक पाती थी। और पहले तो बाज़ार में नहीं रहता था, गेहूँ, सरसों, बाजरा कुछ भी लगा लो जी। सरकार ने जी बड़ी बढ़िया सुविधा दे रखी है, बीज से लेकर खाद तक सब्सिडी मिलती है, और हमें कोई सब फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। और पहले लाइनों में लगना पड़ता था, बीज खाद के लिए घूमना फिरना पड़ता था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, खाद बीज टाइम पे मिल जाता है और किसान खुश है। सरकार बढ़िया काम कर रही है इस बार। अब भाजपा ने जी सारी ऑनलाइन सिस्टम कर दिए फसल बेचने के लिए, और क्या नाम है, बीज खाद के लिए, ना लाइन में लगना है, ना और कोई दिक्कत आती है। फसल बेचने के लिए लेकर आते हैं, अपने गेट पास कटवाओ और अपने मंडी में फसल बेचो, टाइम पे पैसे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने सभी को ये निर्देश दे रखे हैं कि किसान भाइयों को किसी प्रकार से भी बीज से लेकर के और बाज़ार तक अपना माल बेचने में कोई असुविधा ना आए, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करती है और उनके लिए अपनी सोसाइटी के माध्यम से बीज और खाद प्रोवाइड करती है, ताकि किसान समय पर अपनी बिजाई कर सके और अपनी अच्छी फसल उत्पन्न कर सके। मंडी में आने वाले किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे उनके गेट पास काटने संबंधित व्यवस्था हो, चाहे उनके बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उसके पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा या आप विजिट करेंगे तो आपने यहाँ पाओगे कि किसान किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमने हेल्प डेस्क लगा रखा है किसान भाइयों के लिए। यदि किसी किसान भाई का कम वेरिफिकेशन हुआ हो या किसी का IFSC कोड मिसमैच हो रहा हो, तो अपनी हेल्प डेस्क के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को दर्ज करवा सकते हैं और उसके 24-48 घंटे में हमारी सॉल्व होके आ रही हैं। ये अभी किसान वर्तमान में हमारे गेहूँ और सरसों की फसल लेके आ रहे हैं, और MSP रेट के ऊपर गेहूँ हमारे 2400-2500 रुपये क्विंटल और सरसों हमारी 5950 रुपये क्विंटल दर से किसानों भाइयों से खरीदी जा रही है। और जो हमारा माल यहाँ मंडी में ऑनलाइन बिकता है, वो ऑनलाइन ही किसान भाई खाते के अंदर पेमेंट आ रही है डायरेक्ट विद इन 72 घंटे। जब
ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी तो किसान भाई आड़तियों के माध्यम से अपनी फसल बेचते थे। तो जैसे कि आड़ती से उनका पहले से लेन देन भी होता था, तो वो उनके साथ उनका लेन देन कोई बकाया है तो वहाँ एडजस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में एक एक दाने की कीमत किसान भाई के खाते में जा रही है, तो इससे किसान भाई खुश हैं। नहीं, किसान भाई वर्तमान में आप देखेंगे कि 3 नहीं बल्कि 4-4 फसल भी कर रहे हैं कुछ किसान। तो यहाँ पे कई किसान हमारे फूलों की खेती भी करने लग गए हैं, जैसे गेंदा वगैरह की, तो उनकी इनकम का साधन बढ़ा है। और वर्तमान की जो हमारी सरकार है, उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं किसान के हित के अंदर उनको बढ़ावा देने के लिए, कृषि उपज को बढ़ावा देने की नीतियाँ बनाई जा रही हैं, तो उससे किसान भाई बड़े खुश हैं। और आप मंडी में आप बिल्कुल खुश होकर लौट रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से और मेरा स्टाफ सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 11 बजे तक प्रत्येक व्यवस्था को अपनी निगरानी के अंदर व्यवस्थित करवाते हैं, ताकि हमारे किसान भाई किसी प्रकार से परेशान न हो। और इस कार्य में हमें जिला प्रशासन का बड़ा सहयोग मिलता है कि लगभग 2,48,000 क्विंटल गेहूँ की परचेज हो चुकी है। हमारे यहाँ पे हैफेड और वेयर हाउस 2 एजेंसियाँ हैं, अल्टरनेट डे के ऊपर 3 दिन हैफेड परचेज कर रही है, 3 दिन वेयर हाउस कर रही है। और इसी प्रकार से हमारी सरसों की परचेज 6950 पर क्विंटल के आधार पर 1,32,000 से ज़्यादा क्विंटल सरसों हमारी परचेज किसानों से की जा चुकी है। और हमारी पेमेंट है ऑनलाइन पेमेंट, लगभग अब तक 63 करोड़ पेमेंट किसानों के खाते में जा चुकी है। By delivering assistance on every aspect of seed to shop, the Haryana government's approach continues to transform the lives of India's andatas while producing 104 lakh metric tons of food grain, making Haryana the second largest contributor to India's central food grains pool. This is Haryana's success story.